So we are going to start the sharing session. I would like to invite Kumar here for sharing and giving us brief input about his exploration about the proposal, about the content. Namaste everyone. I will be sharing briefly about my journey and the next 10 years. So when I look back, since my school days, I had certain questions in me, mostly related to me and the society. So why am I here at all? Why am I living? What is my goal? All those questions are there. And what would be the right way to transform the society? So when I studied history, I found that there were two kinds of streams. One was the non-violence and the other was movement to war. So what is the right way? So these kind of questions were there in me. When I came to study at IIT, then I took one course on Western philosophy. And I thought that I will getting some answers from here, but I could not get. So I then joined Vedanta Samiti here, trying to learn Vedanta. But still my questions remain. Then I also listened to Osho, his courses. In the meantime, I met Ganesh. And when I met Ganesh, I got very objective answers to my questions. So I was satisfied. And then my journey with the HE began. That was way back in 96. So during my BTech only, in the final year, I made up my mind that I'm not going to stay in the hostel. So I left the hostel and I stayed at Sansthan in my 8th semester. Then I had to earn for my family also. So I joined at Tata Motors at Lucknow for some time. And then I was full time available at the Sansthan. And my journey was continuing. I could see that the intensity of observation was the beginning of my journey. But gradually, when I got exposed to my lack of confidence, then it somehow also got focused towards my expression. So inner observation was only, but the expression part also came into my focus. And then there were so many issues that I was struggling, and I found myself transformed. Very recently, when I was shared the morning special case book, some sharing that I had made in 2021, I read it and I found that I have moved ahead of this thing. And I can see that I am moving ahead. So now, staying at the Sansthan exposed me to a lot of responsibilities and also my places where I have to work upon the children. Then I joined my master's and PhD at IIT, and then I started teaching at one of the Bhotia University. During this whole journey, UHV was also progressing. In 2006, it was implemented at 2005 ODI. Then 2009 at AKTU. So we now had a bigger team to work with, and there were more team members also. So the progress was continuing. And then I got implemented in AICT, and then got all about. So when I look at my inner transformation, so when I look at if I take into account the graduate attributes, let's say. So the holistic vision of life that is gradually progressive. I now find that mostly I think in terms of continuity and insight. So whenever I'm doing something, I try to evaluate whether this can form a tradition. So earlier it was limited to my limited.
whether it is going to be mutually fulfilling or not. But I also found that this mutual fulfillment is incomplete unless you look at the definition. So initially I was struggling with mutual relations, but I can now see the relation of self. Now my identification of is no longer linked to and it has still expanded. And I got most of my questions. Now, where I'm lacking, I'll say I want to be a pure observer and observe with purity without mixing anything from my side, what I'm mixing presently. Because I see that it's just like climbing a hill. You climb the hill and get tired and then you wait for some time, you sometimes come back. So it's just like that. So you observe for some time and then get fed up. Enough, next time. So I'm trying to practice observation. One good thing happened recently when we were having a discussion. So for a long time, I had been waiting to uh, cross that threshold for getting contemplation awakened. That something will happen in me and some value will get contemplated. And then I say that it is not there forever. But during the discussion, it came out that even now I can be a pure observer. And some more clarity we had at the level of buddhi and chit recently, that at the level of contemplation understanding. So that further boosted my confidence that yes. Because earlier I was thinking that I'm going up to this level, let's say at the level of imaging in desire, but not able to cross the limit where contemplation can take place. And I'm not progressing at all. I'm not sure how to take it. But now this role as a pure observer has somehow given me that confidence, and I'm getting that yes, that getting sharper and broader. So at the level of self, I can see this better. Now, when it comes to behavior, so I do find that still my behavior I have to keep working upon. Many times, I generally find that many times I can see that something is right, but when to say that this is right to the other person, so that the other is not hurt. So I wait for some time and then whenever I say this to the other person, another feels hurt. I feel that still I have hurried and I should have taken some more time. This kind of thing is there. Also, I do keep on weighing between two options. For example, fulfilling a mutual relation and fulfilling harmony at the larger order. So it may be I am trying to work out something which may not be fulfilling to you, but it may be fulfilling to the larger order. So which should be given more priority, that kind of thing. I sometimes keep on thinking. But gradually I found that ultimately this larger order is in relation with all. Okay, so I have to work on the feelings more sharply so that it becomes applicable to everybody. Now when it comes to work, so yes, I don't get much time and opportunity to interact with nature because I'm in teaching profession. So in the morning we have to go to the college, sit in the chair, right, and then come back. So not அதனால ஒண்ணும் இல்லைங்க. நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்களா? என்ன வேணும்? இன்னைக்கு மீட். So there I'm not getting enough opportunity to do physical work. So that I'm looking for. When it comes to ethical conduct, then I can see that yes, I'm doing well. In fact, I was given the charge of director, and then I make sure that everything happens ethically. I already had decided that not a single penny will come in my pocket is not mine. Even though I'm just going to rupee from my side. So I am also discussing it openly to my colleagues. So gradually I'm finding that those who were in the like they were trying to weigh out which way to go. Now they are moving this way. So gradually that human conduct, that ethical conduct is very much there. And people are able to also, in fact, in my institution, I can see that they are able to work harmlessly, very smoothly. And it just feels like a family. So this is also giving me a feedback that yes, certain things are happening on the right path. Health-wise, I'm fine, but yes, I have to keep on doing something for health. And I do feel grateful a lot to Ganesh
since day one, because I got the confidence that I will get the answers. That was when I met Ganeshji. So I do feel very much grateful to Ganeshji. I do feel grateful to Nagaji, through whom we got the proposition and then the clarity was there. I do feel very much grateful to my parents who have been taking care of me all along. So, and all my family members and the entire team. So I wanted to say thank you all. So yeah. Thank you, Bhaiya. Thank you very much for your sharing your journey, where commitment is motivating for all of us. So next, I would like to invite Dhiren Bhaiya for sharing. मेरे पैर में मुझे चोट लगी है, इसलिए मैं कुर्सी पे बैठता हूँ। धीरे जी पूछता है कैमरा पे ना ओके सारे लोग बोलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ देखेंगे। सभी को नमस्कार। राजुल जी यहाँ पर है, मंगेश जी बहुत समय से लोग जुड़े हुए हैं, आगल सर, जरूर भैया, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम ले सकते हैं, कुमार भैया, सभी लोगों को नमस्कार। ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते बिल्कुल? एक ही बस एक ही है, ठीक है, आई टेक द लिबर्टी, more of the people can tell you what I was saying. Yeah. तो क्या है कि जो वस्तु है, जो कहनी है वो बात तो आ जाएगी, पर भाव नहीं आएगा अंग्रेजी में, इसलिए जो है वो बेहतर है कि वो हिंदी में अपनी बात को मैं कहूँ। और मुझे बताया राजू भैया ने था कि अपनी जर्नी बतानी है, तो मेरी जर्नी में से अब वो मुझे ऐसा कुछ आभास है कि जब यूएचवी के जब शिविर लिए जाते हैं या सेशंस होते हैं, तो उसमें जो बिगड़े हुए लोग जो थोड़े से सुधर गए, उसमें मेरा नाम आता है, तो लोग नाम से पहचानते हैं, ऐसा मुझे आभास है, सीधा मेरे सामने तो मुझे नहीं बताया जाता, तो इस दृष्टि से मैं बता देता। तो ये बात ये है कि यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और यात्रा कैसे चली, मुख्यतः मेरे ख्याल से दो ही बिंदु है। तो ये 1995 में मैं झाबुआ में पोस्टेड था। झाबुआ एक जिला है यहाँ का, यूज्ड टू बी मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, माइट स्टिल बी, और भील और भिलाले ऐसे पूरे जो वनवासी आदिवासी कहते हैं वो लोग रहते हैं। और मैं 91 में वहाँ पोस्ट हुआ था, उससे पहले गवर्नमेंट इंडिया में दिल्ली में था, फिर मध्य प्रदेश सरकार का नौकर हो गया, तो पहले चूंकि यहाँ किसी जान पहचान नहीं थी, तो सबसे पिछड़ा एरिया हुई था, तो वहां पर पोस्ट हुए वहां चले। तो हमारे कलेक्टर थे मिस्टर मनोज चलानी, तो एक दिन उनका दोपहर में फोन आया कि यार वो कोई मेरे को उनको इक्लिप्स इन कोरिया करके एक मेंबर पार्लियामेंट होते थे, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया, मेरे घर कोई गेस्ट आए हुए, तो आप तो बैठ सकते हो क्या? तो बैठ जाएंगे, कलेक्टर बोल रहा है तो बैठना ही, मतलब उसमें क्या वही नौकरी है जो बोलते हैं कलेक्टर। तो और बोले कि आजाद को भी लिया, तो देयर यूज्ड टू बी अ डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर मिस्टर सर आजाद, तो हम लोग कलेक्टेड में और ऑफिस था, तो उनको भी लेकर के हम दोनों उनके घर पे गए। तो उनके घर पे जो एक सज्जन थे, तो वो मिले, अपना वो बंडी और वो घी पहने हुए थे, और हमारे कलेक्टर बड़े अच्छे आदमी थे, तो हमने कहा यार ये भले आदमी है, कोई साधु संत ने को डारा है इनको, है ना, तो भी ज्यादा उनके प्रति निष्ठा थी नहीं, तो खैर वो चूंकि कलेक्टर ने बोला था, तो हमने कहा आ गए, अभी घूमते घामते गए बैठ गए उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या करते हैं, तो सरकारी आदमी बता दो कि क्या करते हैं, तो बहुत कुछ बताने को होता है, क्योंकि आप ही ने संभाल रखा होता है पूरा, तो हमने बताना शुरू किया। तो उसमें मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट चलता है, मैं वो देखता था, लिटरेसी प्रोजेक्ट दोनों देखता था वहां पर। हमने बहुत सारी बातें बताई थी शिक्षा में क्रांति के लिए क्या क्या काम हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनसे आजाद से पूछा, मैंने कोई 30-40 मिनट बताया होगा, तो सज्जन सुनते रहे। फिर जैसे आजाद से पूछा, तो आजाद बताया कि बहुत सारी स्कीम्स थी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो वो भी ऐसी जगह बहुत सारा बताया।
कोई ना बताते रहते थे। तो फिर वो मुझसे बोले कि आप तृप्त है क्या? तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैंने कहा यार ये तृप्ति शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते लोग। तृप्ति नाम वाम होते हैं पर तृप्त है मतलब, अरे यार क्या प्रश्न पूछ रहा है, तृप्त है क्या? फिर मैंने थोड़ा डरा, तो मैंने कहा तृप्त जो भी उसका मतलब हो, वह तृप्त तो नहीं है। कि बोले क्यों तृप्त क्यों नहीं है, आप अक्खी बंद करते हैं आप? तो मैंने बताया सारे लोग प्रॉब्लम में है, कलेक्टर को छोड़ के जो उनके बंगले में थे, है ना, बेने का नहीं सुनते, मेरे नहीं सुनता, जिला में ध्यान देते कैसा है, किसी को ऐसा है, तो वो ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ये है वो है, ऐसा बताया, उनको पूछा, उन्होंने भी अपनी सारी कठिनाइयां बताई जो सरकारी अधिकारी बताते हैं। तो फिर बोले कि अच्छा ये सब हो जाए, ये जितना आप सोच रहे हैं, वो तो शिक्षा को लेकर वो जो ट्राइबल वेलफेयर में शिक्षा भी ट्राइबल वाले ही देखते हैं, और तो जो देखते ही थे, आई वाज नोडल अफसर, तो ये सब ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, तब आप तृप्त हो जाएंगे। तो ये प्रश्न बड़ा भारी पड़ गया, तो तृप्त हो जाएंगे, अब ये सब ठीक हो जाएगा, ग्रिड ठीक हो जाए, सीओ ठीक हो जाए, जनता ठीक हो जाए, है सब सिस्टम ठीक हो जाए, फिर भी तृप्त हो जाएंगे क्या? तो फिर हमने कहा सब अब निकलते हैं, आप भी खाना बना के हम भी आते हैं, टाइम भी हो गया था खाने का, मतलब लंच का टाइम भी था, नॉट दैट इसीलिए चले गए, तो अच्छा मौका मिल गया, निकल गए वहां से। तो घर जब मैं पहुंचा तो फिर क्या ठीक है, खाना खा के फिर वापिस आए। तो मैं कहा साहब अब आप बताओ, तो आप बोलो, तुम तो बोलिए जो बोलना। तो कुछ मतलब नहीं, वो सब में से गणेश बागड़िया, जैसे सभी लोग परिचित ही हैं, है ना? तो कुछ बातें उन्होंने शिक्षा को लेकर के कही, कि अल्टीमेटली जो शिक्षा है उसके साथ समस्या है, इसको लेकर वो कुछ बातें कही, वो हम सब लोग उन चीजों से काफी कुछ अदरवाइज अवेयर ही है। और फिर कुछ सुविधा की बात हुई, कुछ सम्मान की बात हुई, छोटी छोटी बातें जो काफी पुरानी बात है, 25 की बात है, तो उस समय जितना अभी रेगुलेटेड रूप में हम बातें करते हैं तो उतना उस समय नहीं होती थी। तो फिर वो मुझसे थलानी आ गए 3 बजे के आसपास, तो मुगल निकलते हैं, जब थलानी रात किया, कालीपुर जरा वो भावरा, वहाँ जगह है भावरा और कटरी वाला, उसमें वाटरशेड कार्यक्रम चला करते थे, राजीव गांधी मिशन करके, तो कोई दिखा तो दिखा देंगे। तो इसके पहले बिफोर गेटिंग पोस्टेड टू झाबुआ, वी वर लिविंग इन दिल्ली एंड गाजियाबाद। तो एक प्रकार का रहन सहन था, और जो कि घर पे रहते थे, माता पिताजी के साथ रहते थे। तो जब आए थे तो पिताजी माता जी की शादी के समय का एक पंखा, टेबल फैन और एक स्टोव, ऐसे वाला स्टोव, और 2 गद्दे चादर लेके आए थे। और रहते ऑफिसर्स कॉलोनी में थे, ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग थे, सुविधाएं विधाएं बहुत हुआ करती थी। तो उस जमाने में जो है वो ये हुआ था कि भाई वीसीआर जो आता है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डेड प्लेयर जो आता है, वो उस जमाने में किराए पे मिला करता था। तो 100 रुपए किराया लगता था, 3 फिल्में लोग रात में देखा करते थे, ऐसा कुछ था। बाकी सबके पास था, सब एसडीएम फूड ऑफिसर हमारे पड़ोस पड़ोस थे, हमारे पास नहीं था। तो बहुत दिनों से ये हो रहा था कि भाई हम भी ले लें, ये सबके पास तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये हुआ था कि शाम को चल के हम लोग जो है वीसीआर खरीद के लाए थे, बात बात हो गई थी, वहां एक ही दुकान होती थी सब चीजों की, बात बात हो गई थी। तो मैं जब लौट के आया शाम को, तो वो बोली कि हमारी बच्ची श्रीमती जी बोली कि कितने बजे चलना है, मैंने कहा चलना है, बोले वीसीआर लेना था। मैंने कहा यार वो लेना है कि लेना, अरे बोले महीने भर से बात कर रहे हैं, लेना है कि नहीं लेना है, सब बातें तो हो गई। मैंने कहा यार मैं सोचा था यार कि अपने को मतलब सम्मान के लिए चाहिए तो सुविधा के लिए चाहिए। बोले क्या बोल रहे हो, सम्मान क्या सुविधा क्या क्या मतलब? मैंने मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई है, पहली बार सुनी थी ऐसी बात है। मैंने कहा देखो यार ये सब दुनिया भर की झंझट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इधर काम खाएंगे, और इन सब लोगों के पास है, इसलिए ले रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं, या एक्चुअली अपनी जरूरत है, तो बोली नहीं जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा तो बोले क्या हो गया, मुझे क्या हो गया? मैंने कहा देखो कल तक पे कोई आया हुआ है, कोई ये ऐसी सी बातें कर रहा है। तो बोली मेरे घर पे बुलाइए। तो फिर उस दिन तो क्या शाम हो गई, एंगेजमेंट से हो गए। अगले दिन हम लोग इवेंट टू सम प्लेस आगरा कट्टी वाला करके, वहाँ कुछ जगह है वाटरशेड देखा था हम लोगों ने, कुछ बातों में थोड़ी और क्लैरिटी हुई। फिर मैंने
और उस समय झाबुआ जिले में 12 ब्लॉक हुआ करते थे। अभी 2 जिले हो गए, एक रायपुर एक उस्मान। तो हमारे 12 जिले के जो ब्लॉक ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने फोन कराया, मैंने कहा शाम को सब लोग मेरे घर आ जाओ। इनको भी बोला तो हाँ बोले आ जाते हैं। तो फिर बैठ के भी बात बात हुई, और फिर धीरे धीरे जो है, फिर आप पूछेंगे वीसीआर क्या हुआ, तो वीसीआर नहीं लिया। वीसीआर नहीं लिया। उस समय जब ये बात हुई तो फिर बात थोड़ी पकड़ में आनी शुरू हुई कि यार मामला जो है उतना गलत दिशा में अपना चल रहा है। और नॉर्मली जो है वो अधिकारियों का, नॉर्मली मतलब अधिकारी का मतलब होता है अधिकार संपन्न बनना चाहते हैं। अधिकार संपन्न बनना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो नौकरियों में जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं। और जो एक वो रहती है, जब वो रहती है तो उसमें लगता है कि अरे लाख व्यक्ति भी होगी, एक गाड़ी भी होगी, एक आदमी भी होगा, साथ में 4 नौकर भी होंगे, बंगला भी होगा। बंगला बने न्यारा टाइप का दिमाग में चलता है ना, मतलब वो ऐसे ही चलता है। जो लोग मोस्टली वर्गल साहब के त्यागी के लिए नहीं कह मोस्टली जो है। और हम भी जब तैयारी वेरी करते थे तो दिल्ली दिल्ली में थे तो उस समय पर ये बातें होती थी कि भाई चीफ सेक्रेटरी की लड़की को मतलब पढ़ाएंगे, नैनीताल में घूमेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, ऐसी टाइप की बातें होती थी। फिर बात समझ में आई तो फिर मैं गणेश जी से कहा कि भाई बाकी लोगों को बात समझ में आई, तो फिर ये हुआ कि इसको देख एक आप हमको विस्तार से इस बात को रखिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई विस्तार से बात 8 दिन में होती है। तो मैंने कहा ठीक 8 दिन में रखिए, 8 दिन में करते हैं। तो पहला जो फिर वो हुआ वो रखा गया बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में। एक और रण सिंह जी है, कुछ लोग जानते होंगे, तो बिजनौर रखा गया। और परंतु उसी समय वो डेली मीटिंग आ गई, तो आई वॉज नॉट परमिटेड टू गो। तो फिर कुछ लोग वहां गए। फिर सेकंड जो हुआ, फिर वो एक मेघनगर करके जगह है, वहां पर जब झाबुआ करीब 18 किलोमीटर दूर मेघनगर करके एक जगह, वहां पर एक क्रिश्चियंस का एक हॉस्पिटल था, एक फादर थाइल होते थे, उनके यहाँ हमने शुरू किया। जब हमने किया तो हमने जितने विद्वान हो सकते थे झाबुआ में आसपास में, उन सब विद्वानों को बुलाया। विद्वानों को बुला करके तो गणेश जी ने उसको लिया। तो एक किस्सा उसका बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे किस्से हैं। तो उन्होंने ये कहा ही जाता है कि भाई जो भी बात कही जा रही है वो प्रस्ताव के रूप में है, उसको मानना नहीं है, उसको जांचना है। कैसे कहा जाता है? तो जांचना है। तो एक बात यह है कि भाई विश्वास जो है वो आधार मूल्य है, ऐसे ही कहते हैं भाषा में, विश्वास आधार मूल्य है। और विश्वास के बिना कोई भी जो संबंध है वो घटित नहीं होता। तो ठीक है, और बहुत सारी बातें बताई गई, ठीक है। तो मैं उन दिनों में बच्चे स्कूल छूट के आते थे तो मैं और मेरे पत्नी हम लोग मेघनगर आते थे, 18 किलोमीटर करते थे, लंच के समय वापस जाते थे। फिर बच्चों को लेकर फिर वापस आया करते थे। तो पर लगा क्या जांचना है, तो लगा ठीक है जांचना है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या जांच लेते हैं। तो पहले जांचा, मैंने कहा कि ठीक है पत्नी से बढ़िया है, बच्चों से दिक्कत नहीं है, यार दोस्त बहुत ही बढ़िया है, ऑफिस बहुत ही बढ़िया है, तो अपना मामला ठीक है। फिर उनका जांचना है तो जांचे कैसे, तो ठीक है। तो उसने मैंने ड्राइवर जीप हुआ करती थी उनके जमाने में, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि तुम पीछे बैठो और तुम गाड़ी चलाओ। नॉर्मली क्या होता था कि ड्राइवर पीछे बैठता था बच्चों के साथ, हम और पत्नी आगे, फिर ड्राइवर के ले आता। तो मैंने उनसे कहा कि तुम जो है वो ड्राइवर को बोला तुम गाड़ी चलाओ, पीछे बैठो बच्चों के साथ, सलाम चलाएंगे। मैं बैठ गया पीछे, दोनों बच्चों के साथ बैठ गए। दोनों बच्चे खूब बढ़िया हंसते गाते इतना बातचीत करते लड़ते झगड़ते जाया करते थे। थोड़ा सा आगे निकले तो मेरे बेटी को मैंने पूछा, वो मेरी बेटी निमिषा है, निशु, तो शी वाज ऑलरेडी इन एयरफोर्स में बैंगलोर। तो छोटी थी, तो मैंने कहा कि निशु कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। थोड़ी देर निकल गए 2 किलोमीटर और, तो क्या बोलते तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, ठीक है पापा। 1-2 किलोमीटर और निकल गए। फिर मैंने बेटे से पूछा, कभी कोई बड़ा हो गया, 35-36 साल का है, ये इज ऑल्सो मूविंग कमांडर एयरफोर्स में, कैसे चल रहा है पापा, अच्छा चल रहा है। हमारे दोस्त ठीक है। उसके बाद वो 14-15 किलोमीटर मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी, क्योंकि मैंने कभी बच्चों से बात ही नहीं करी थी। ना मुझे ये पता कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इनके दोस्त कौन है, ये क्या पढ़ रहे हैं। वो होती थे कुछ रहते थे, इसलिए हम नहीं रहते थे उनके पास। और हम पत्नी से बात करते जाते थे, तो ये अपना खेलते करते जाते थे। तो मुझे पहली बार समझ आया। और उसके करीब 4 साल बाद मैं अपनी पत्नी से पूछ पाया, एक बार वो उज्जैन पोस्टेड थे, तो 4 साल बाद में हिम्मत करके पूछ पाया कि तोते मुझ पर भरोसा है कि नहीं, विश्वास है।
तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रश्न आए, और जिसको आप अव्यवस्था कहते हैं, तो उस अव्यवस्था में हम पूरे भीगे डूबे और घिरे हुए थे। तो शुरुआती 5-6 दिन में रात रात भर नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि कोई यहाँ पर थोड़े चला, क्योंकि इतनी सारी मान्यताएं टूटती थी, रोज बैठते थे, रोज बातें होती थी, इतनी मान्यताएं थी। और उसमें आप समझिए कि पहले 4-5 दिन जो है वो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश तो की उन्होंने, गणेश जी ने, परंतु ये तय नहीं हो पाया कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। अभी शुरुआत ऐसे करते हैं ना, क्या व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, निरंतर सुख के साथ जीना चाहता है? आपका कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? और उसमें लोगों ने कुरान शरीफ भी बताई, भगवत गीता भी बताई, रामचरितमानस भी बताई, कबीर भी बताए, सूरदास भी बताए, क्योंकि एक से एक विद्वान हमने बुलाए थे, क्योंकि सुख तो थोड़ी चलता है जैसे नॉर्मली चलता है ना। तो बहुत सारे हुए। फिर उसके बाद फिर हमने 2 हफ्ते वहां पर किए, और फिर आई गॉट ट्रांसफर टू उज्जैन। तो उज्जैन में फिर गणेश जी, उस समय फिर कुमार भैया का गाना शुरू हो गया था, फिर उज्जैन ट्रांसफर हुआ, विदिशा ट्रांसफर हुआ, जबलपुर ट्रांसफर हुआ, अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होते रहे, सरकारी नौकरी जैसा होता है, तो वहां वहां पर हम लोग प्रयास करते रहे इसके लिए, है ना। तो कभी गणेश जी आ गए, कुमार भैया आ गए, कोई ना कोई आता गया, करते रहे, तो ये चलता रहा। परंतु somehow or other we were not able to introduce it in the government. That was a big issue. तो यहाँ पास में एक स्कूल है, इसको बिलाबाग स्कूल, एक इंटरनेशनल वो है, पूरा नेटवर्क है, तो उसमें एक मिस्टर नजम जमाल करते हैं, उसके चेयरमैन। तो आई वाज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट आल्सो, भोपाल। आई रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर, पर मैं 2006 में जब मैं आया था तो डीओ, तो उनसे अचानक भेंट हो गई, इनवाइटेड, तो भेंट हो गई, तो उनको भी हमने फिर यही इंट्रोड्यूस किया। मुझे नहीं पता कुमार भैया वहाँ आए थे कि नहीं आए थे, वो मिला कौन? अच्छा, प्रवीण और आतिशी आए थे। आतिशी उस समय जुड़ी थी, मतलब जो एक्ससीएम ऑफ दिल्ली उसमें जुड़ी थी, उस समय के हम लोग यहीं पर थे। प्रवीण भी, प्रवीण था यहाँ पर, और गणेश जी भी 2 बार गए थे। तो उन्होंने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस उसको काफी कुछ किया है, यूएचवी को। और अभी करीब 2021 या 22 शायद रहा होगा, राजू भैया को याद रहती है, डेट्स में तो रहती नहीं है, 22। तो हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी स्कूल एजुकेशन, मैं सभी सेक्रेटरी से बात करता रहा, अपने लेवल पे करता रहा, और कुछ कोई डायरेक्टर आईएएससी भी रहा है, जो जहाँ पर ये बीएड एंड पीएचडी होता है वो भी रहा है, वहां भी इंट्रोड्यूस किया, परंतु एट ए लार्जर लेवल करना मुश्किल हो रहा था। तो गणेश जी आ रहे थे, तो मैंने उसको इनको बुलाया, इनके बच्चे, यानी जो नजम जमाल के स्कूल में, बिलाबाग स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उसके बच्चे पढ़ते थे। तो मैंने कहा बात कर सकते हो क्या? मेरी भी बहुत अच्छी थी, पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी तो रोज ही मिलते थे, तो आप बात कर सकते हो? तो बोले पर आप बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रश्मि शर्मा से बोला इस प्रकार से कार्यक्रम है, और अरे बोले वही जो बिलाबाग में चलता है। मैंने कहा हाँ हम वही है। अरे ठीक है, मिल लेते हैं, मिल लेते हैं। तो देन गणेश जी और शायद पता नहीं राजू भैया उसमें थे कि नहीं थे, आई डोंट रिमेम्बर। जब उनसे मुलाकात हुई, रश्मि जी से मुलाकात हुई, और रश्मि शमी है, शी इज नाउ सीएस फूड है, एज चीफ सेक्रेटरी फूड है। देन शी सेड ओके गो अहेड। और उसके पहले थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया था राजन संस्थान के साथ, जबकि इकबाल सिंह बैन साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी थे वो थे, और अर्गल साहब जो है वो आ गए थे। तो वो प्रयास जो है वो अर्गल, वो तो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं होते अर्गल साहब। फॉर्चुनेटली अर्गल साहब लगा था जब अपनी जर्नी बताएंगे तो बताएंगे। तो थोड़ा राजन संस्थान में काम शुरू हो गया था, और मतलब स्कूल एजुकेशन में कैसे शुरू हुआ। देन शी सेड गो अहेड। जब उन्होंने कहा तो उसके बाद देन वी नीडेड एजेंसी की, करें कैसे? क्योंकि कोई भी सरकार आती है, जैसे अभी यहाँ भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस सरकार थी, तो किसी न किसी विचारधारा में चलते हैं, है ना। विचारधारा का एक इशू आता है, तो विचारधारा वाला मामला यदि राजनीतिक संस्थान उसको टेकअप कर लेता है तो ये इशू नहीं आएगा। तो अरविंद साहब यहाँ पर थे, प्रवीण नंदाड़े जी हैं, वो थे, सत्या भैया थे, जो कि इससे इंट्रोड्यूस थे उस लेवल पर। तो देन हम लोगों ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया। उसके पहले भी बार कोशिश की थी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी दीप्ति गौड़ मुखर्जी, मतलब वो राजू भैया के बहुत, जब वो बहुत छोटी होती थी राजू भैया के घर पे उनका आना जाना होता था, उसमें प्रयास तो किया था पर हो नहीं पाया। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो है वो जर्नी रही है, यानी कि 95 और 96 से शुरू किया आपने, और करीब 2020-21 पर जाकर के ये बड़े लेवल में आ सका। तो थोड़े थोड़े लोग तो जहां जहां पर भी लोगों को इंट्रोड्यूस किया हमने,
तो वहां पर थोड़े लोग तो जुड़ते रहे, परंतु एक लार्जर लेवल पर जो होने का काम तभी हो पाया जब कोई व्यक्ति किसी कारण से कन्विंस था। तो मिसेस रश्मि शमी, क्योंकि उनके बच्चों ने वहां पढ़ाई की थी, तो उनका खुद का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और तो अपने बच्चों के बिहेवियर के कारण वो कन्विंस थी, तो लगता कि ये बातें हैं, तो उस कारण से ही हो पाया। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पर इतनी बातें पर्याप्त हैं जल्दी बताने के लिए। और किन्हीं कारणवश मैं थोड़ा सा मेन लाइन से, यानी मेन लाइन से अलग हो गया गणेश जी की अनुमति के साथ। तो गणेश जी कहते हैं ना कि आइए, वो गणेश जी कहते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं ना, मैं ऑल्सो 69 नाउ, बोलते हैं वो बड़े लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए, तो आप आशीर्वाद शुभकामनाएं देते रहते हो। तो मैं किसी और सामाजिक कार्यों में लग गया हूँ, बट जहाँ तक आवश्यकता पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे पूरे तौर पर आई थिंक उतना सफिशिएंट होना चाहिए। मैं शुक्रिया, उनकी काफी प्रेरणादायक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू भैया से। जी ठीक है। तो अब मैं अगले भैया से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जर्नी शेयर करें। मैं तो भैया कल कर चुका हूँ शेयर। और आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे तो दे दें। नहीं भैया, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग में वट एवर एफर्ट वी मेड, आई मीन दे वेर पॉसिबल ड्यू टू धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, because even after retirement he is the contact person for education department, and whenever we Rajanand Sansthan is facing any problem, the Dhirendra Chaturvedi will come to rescue. लोगों को ये समिति आयोग का लेटर भी भेजना था, वो भी नहीं जा पा रहा था शिक्षक, इसलिए भी हम लोगों ने सर से संपर्क किया। आपका बाद में ले लेंगे तो लीला दीदी आपका नहीं हो रहा इधर ही को अगर ये सेशन ये आपका कुछ नहीं है है, पर वो लीला दीदी का दीदी ने बताया था अभी, ठीक है। मुझे सिविल करने का मौका Now I would like to request Geeta Didi for her sharing. Namaste to all. Vanakkam. I am A. Geeta from Tamil Nadu. Ever since I remember from my school days, I had a sanskar of becoming famous like great leaders of our country. I wanted to do something good to the country. Thereby, my name will also be in the history books. So then I was passionate about reading the life histories of national leaders, their sayings, quotations, their success stories. I started to collect and write famous quotations, not only to motivate me, but I shared with others also. So I started my life and career both as a college lecturer and a motivational speaker. Though I consider myself as a motivational speaker, getting inspiration from the words, quotes, life histories, whenever I was in distress, disharmony, nothing came to my rescue. There I could see the gap. That confidence, that hope was only momentary because I was not addressing the root cause of my suffering. So the theme was based on sufferings, the pathway to see the reality. In almost most of my sharings, I had always projected that I am good and my spouse is bad. And I was having that assumption my life was miserable only because of him. But during these 6 years of my journey with UG, and when I look back, now I can clearly see for myself that
I try to gain sympathy and emotional support from others. And I always post myself as a good and perfect person. In UG also, initially, I was seeking attention, name, and fame. So whenever Ganesh ji tells my name, I could see I was getting excited. Even on day one, I felt the same amount of excitement. So I can see I'm having a sanskar of that, being special, seeking attention. Now, I can see that all my sufferings are because of my own assumptions and feelings, not the other. In one of the recently concluded face-to-face FDP at KPR Coimbatore, where Umesh ji was a resource person, I was one of the co-facilitators. For the first time, I shared my own transformations without bringing my spouse into the picture. So previously, in each and every sharing, my spouse will be there and he was my target. So now I can see. I could see the shift within myself. I can see that I was good, those were good to me, and I was really bad, but bad to me. So all those life, I had lived like that. So now my understandings, just information only about my sufferings. Now I can clearly see that pain or sufferings are an indicator to me that I am in disharmony. Thanks to the coexistence for drawing attention. The suffering, it is an evidence to me that my feelings are not in alignment with my natural acceptance, right understanding, and with reality. It is highlighting that my understanding about the reality is incomplete. And I suffer because of my understanding about the reality and not because of other. I am now able to see I suffered because I have mistaken myself for something that I am not. Because of my false identification of myself, the physical facility, with my body, others' words, comments, and behaviors, I was in disharmony. Let me share only two examples. Once in a over bus, this happened some 25 years ago. A man was unnecessarily leaning on me. After 5 to 10 minutes, with fear in a low voice, I asked him not to fall on me. But he immediately raised his voice and said, I was leaning on him. And he said that I'm a type of girl. I felt so ashamed, humiliated. I was for many years unable to share with anyone. I had my own doubt that I am I was victim of words. And I succumbed to those words. But now I can clearly see how strong associating myself with those words. And another sanskar of mine is fear, anxiety, getting tension immediately. Previously, I was unable to do many tasks because I was limiting myself. But now I can do comfortably many tasks both at home and at office. And I am also getting involved in UG activities. So I have got a lot of experiences, but because of that, I have shared only two of my experiences. So thank you for all the information and support. Gratitude for the entire existence. Thank you so much. Thank you, Didi. Thank you so much for the sharing. Now I would like to listen Kishan Kumar Bhaiya. जी नमस्ते सभी को माई सेल्फ किशन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज अमृतसर तो मेरी ये यूएचवी की जर्नी है इट स्टार्टेड इन अराउंड 2012 ड्यूरिंग बीटेक ट्रेनिंग तो देयर इज
unique project used in PTU University regarding UHV. So we are second batch of students who joined internship in UHV sector. There was Jitinder Bhaiya and Meena Bhaiya or Mudan Meena. They are our coordinator and Rahul sir was our leader. So that was the BTech of final year. So we started doing activities in Punjab in various colleges as a part of our internship. As being a student of computer science, we thought we have to develop some system. But when we joined this internship, we are started these activities, organizing, assembling these jagas, outside the. This is for this is for teachers. But after doing BTech recently, after that I joined MTech. Two or three concepts which are clearly I observed. One is what other I do in my career. Physical part of the physical facility that for me, for my family is limited. So I did not go around, bothering around. So mostly that or we as a being a student with you. That is the first part. So after doing MTech 2015, mostly I remain absent in contact with Navia till 2019. That was a struggle time to join because of right. So in 2017, I joined in for assistant professor, DPI course in Java Higher. That was previously 3 years contract. After that, I become recognized in 2020. Then I have come to after one, he short out something. So as a leader, so always keep it as a leader. So you also it should be as a leader. So then again I started this journey that तो ये वाला जो सेकंड पार्ट था भी मैंने भी होगी मेरी वाइफ ने भी 4-5 वर्कशॉप जो we she always go with me as whenever I go as observer. My little daughter, she is around 6 years old. She also goes with us. She has also that in a family there is a harmony with my wife. I see better relation as I see in my colleagues. They always talk about when we talk about family. जैसे हमारी जल्दी घर में जाना है and family also that is a but there is still many lag in my company. And regarding future commitment, we have always we always say involved in some activities. To sound like everyone, I am just asking, give me 26. I will complete my PhD and I will complete it. So that is my commitment. I am trying to complete my PhD this year, and after that, I promise I will continue work whatever activities I will have. Thank you.
Thank you, Bhaiya. Now I would like to invite Jayaprakash Bhaiya for his sharing. Well, yes. Yes. This side, this side. Yes. Yes. Thank you. So, namaste to all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. See, I'm sharing. Now I'm coming from Kerala, and only one person from Kerala to represent our all the co-explorers from Kerala, and also very less people from our region, Southwest region. Anyway, I want to start my sharing. Before my UHP journey, I want to point out some how I was earlier. That also. I was born and raised in a village named Godas Kalimata, Kaligaon in Kerala. It's very rural, farming village. Yes, yes. And when I was studying in rural schools and all, when I was studying in my pre-degree, I was dropped out from my studies. Then I couldn't continue my studies, and then I went to one government degree and take a certificate from the. Then again, did some work in this Madhya Pradesh, in Jabalpur, and again for 8 months. Then came back to Kerala, and then again I started my degree studies and PG in Hindi, and again for my B.Ed. From when I am studying in B.Ed, I met my wife Sunita, and from that last 31 years we are together. 2 daughters. One is a teacher. She is working in my village itself now, and the younger daughter is a journalist. She is in neighboring city, Ernakulam, in a leading newspaper as sub-editor. That is about my family. And my father was a government employee, he's not more, and mother is homemaker. Eventually, I found my journey, and I again joined in government service in 1996 as a tradesman, that is Gloucester. Then I continued again to study to Polytechnic diploma also. That is about my professionally. I joined the government technical education department in 1996, and recently retired. Before 3 years only, I have retired from the service. And despite having a wonderful family, and I'm living with that. My journey into universal human values is begun with exactly a mindset of opposition. Actually, I want to read that from there only, because if I explain that, it is very, it will take time. So then I want to read that part. Our institution, workshop staff, they are generally not permitted to attend any type of faculty development programs. Due to my nature, I felt a strong urge to react and protest this. With the kind help of one of our HOD, I want to remember that this time, Dr. Beena Madam, whom I remember today with immense gratitude. I managed to get the registration link for the online UHP activity. I attended it simply out of defiance
But that FTP became a turning point of my life. It initiated a massive shift in my perspective. I stepped up as a volunteer, joining the PPA team under Mohan Bhaiya's leadership. And I vividly remember the joy of receiving my first phone call from the ULP team from Anurag Dalit. See, as I went deeper, I realized it is actually my self-study and Swadhyaya, through Swadhyaya, I realized that the relationship, the deeper relationship, how along with other human beings, and then I can understand that all these, those who are in my college and my society, earlier they were my opponents because of some ideologies and all. I was deeply involved in that ideologies and I worked with that ideologies. They are also my relatives and I am also part of that coexistence. From there, I feel the harmony of living with happiness. And then I joined the various volunteer activities in UHV in Southwest region and part of face-to-face FDP also. My wife and also now with me in volunteer activities as a helpful partner with me. And my daughters, they also completed this UHV, started this UHV journey. And after my retirement, now I am doing as a columnist in some weeklies, magazines, and Malayalam newspapers. And my vision, which subject they are, they want to write from my side, and they give some information to try on this thing. Then my vision on that is always in this holistic value-based living. My focus is always on reflecting with this lived reality. For me, this UHP journey is no longer just a program. So I want to continue more exploration and also I plan to put time how much I can continue with this UHP activities. Thank you. Thank you, Bhaiya. I would like to invite Amipara Bhaiya. भैया भैया इस साइड ही इसी साइड का से कैमरा में कैमरा देखिए बैठो साथ आप कैमरा में देखिए Namaste to all. And Amipara. Before I start on my UHC part, let me give little report before UHC situation. Actually, my about 39 years career, up to 39, almost 30 years, I was in a position at the head of the department or head of the institute. So majority part of my career, I operated in a commanding position. Barring last 5 years of career and initial about 4 years. So first time I come across UHV workshop in 2015. At that time I learned something, a different operation. Commanding, demanding, and self-exploration. So that was really new to me about self-exploration. But I like the idea. And I could understand
the potential and depth of the concern. So very first exploration for me, or first transformation for me was from commanding board exploration. It was started there. But still somehow concept was not very clear to me. What I understood, being an FDP, it is meant for a learn something and experiment in the class. So, and frankly speaking, my vehicle was in a reverse gear. What I mean is, I was started operating from the nature. We used to make a plan 14th January every year. Some like-minded 5-6 students, we used to go do a plantation. Then after 2015, a very little change in that. Whatever plantation we used to make, I started giving the responsibility to individual plant to take care of it. Because we are not very sure whatever we are planting, whether it is going good. So that was the first experiment I started. Then slowly started implementing in the society as well as especially in class. So many things I could do with the students as well as in the society. But still, these are only within myself, my individual life was still there. It took about, I think, 6-7 years. And by that time, I did UC2. Then with UC2, I thought I'm not clear about the concept. So after 1 or 2 years, repeated UC2. And then meanwhile, from somewhere, I don't know, Ilajidi got my contact. She contacted me and she asked me for contact. I never knew her. She asked simple question. How do you feel about this? What is this? What do you say? What is your opinion? And all like that is still started asking. Then I said, as I said earlier also, that my strong will is to a very strong concept and last person, the society. And for that, very essentially, it has to be implemented. Everything is said, okay, do it. So this is how I enter into the USU, frankly. Otherwise, I was stand alone doing something. And then they said, are you aware of the morning session? I said, no. Okay. The third morning session. So this is how one by one things are started coming up. And then I realized, and very first, then after this RP team member, I have been with Umesh Raya. Where I really, my heart listened of him activity. And then I realized, this is to be some from the start from the beginning, self only. Then after class, I discussed with him also. Yeah, it is for us, or it is for society and other thing. He said, no, it is for us only. Then we had a main discussion. And real, I would say, real journey was started with this. And I really, my gratitude to Ilajidi. She has literally picked me up and put it with mainstream of figures. And then beyond that, now, of course, everything is there. For myself, major job is and then afterwards, many proposals I could implement in myself. We used to have a lot of disharmony at home because my precondition was being a head of the family. So today I want to be a happy. And that was a very big preconditioning. After resolution of that preconditioning, really, it's a life has become peaceful. And then, in the earlier also, wherever I got chance, I shared some of the societal and technology. Recently, one, I would say, for me, it was really this thing I told, resolved is, we used to have
in family, in my home only, with my wife. I used to have some or the other dish only because of very simple thing. If something I tell her 2 times, 3 times, then she doesn't understand it because whatever is, then I used to get irritated. What is this? After telling 2, 3 times also you are not able to understand this. Once this issue in the morning session, I discussed with Sarvya and asked, I'm not able to understand why it is so. Then she said, probably your immunity. Then I started thinking on my own mission. Then I realized, yes, I'm more evaluating myself, under evaluating her. Which I should not do. And then afterwards, it's really, it has, things have become very poor and tough. So, we have more time. I can say a lot of things, but due to that, I will not go into it. Thank you. Thank you, Bhaiya. Thank you very much. I would like to invite Shashikant Bhaiya. सभी को नमस्ते। मैं हिंदी में एक बात लिखना चाहता हूँ। मेरा नाम शशिकांत सूर्यवंशी है। मैं पुणे में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में सहायक प्राध्यापक पद पे काम कर रहा हूँ। तो मैं मेरी जर्नी 2 पार्ट में शेयर करूंगा। मेरी यूएचबी की जर्नी जैसे कोविड-19 ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी, उसी तरह से अच्छी दी। जिस तरह से हम सारे लोगों ने अभी बोला कि सारे लोगों ने कोविड-19 में ही वर्कशॉप किया, उसी तरह से मेरा फर्स्ट वर्कशॉप ऑनलाइन 2021 में हुआ। तो ऑनलाइन वर्कशॉप होते समय 2 चीजें मुझे समझ में आ गई। वो थी कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टिंग विद द सेल्फ एंड द बॉडी, एंड कॉम्पिटेंस एंड इंटेंशन, ये 2 चीजें मुझे समझ में आ गई। तभी लगा कि भाई ये चीज, क्योंकि उसके पहले मैं भी थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचता था, बहुत सारी चीजें सुनता था, रीड करता था, जिसकी ओशो को फॉलो करता था। तब उसके बाद इमीडिएटली पीवीजी कॉलेज में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो गया, वहां मैं गया। उसी समय उमेश भैया थे, कुमार भैया थे। उसी समय कुछ चीजें समझ में आ गई कंटेंट के बारे में। उसके बाद इमीडिएटली बीसीसीओ में यूएचबी 2 हो गया, उमेश भैया मेंटर थे। और उसी समय एक अपॉर्चुनिटी हो गई थी, एनएपी 2020 लागू हो गया। और our is the deemed university, so immediately we started this UHV 1. I took the initiative. We introduced this course and immediately we started teaching from 2021. तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूंगा कि कभी कभी लगता था कि मेरे पास स्थिरता है, लेकिन वो भी स्थिरता अच्छी तरह से नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे इस प्रपोजल को पढ़ाते समय, जैसे जैसे एक्सप्लोर करते गया, तभी तभी मुझे समझ में आ गया कि वो मेरा भ्रम था, मुझे और सीखने की जरूरत है। और रिलेशनशिप की बात करेंगे, फैमिली में पेरेंट को ग्रांटेड पकड़ता था, स्पाउस को भी ग्रांटेड पकड़ता था, और उनके साथ रहता था, लेकिन रिलेशन जितना चाहिए था, रिलेशनशिप का जितना भाव चाहिए था, वो बन नहीं पाता। जैसे जैसे प्रपोजल एक्सप्लोर करते जा रहा था, तभी समझ में आ गया कि भाई रिलेशनशिप का भाव होना चाहिए। और आज के समय में मैं एक आपको बोल सकता हूँ कि मैं हर दिन 2 दिन में, मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा फैमिली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, 2 दिन में एटलीस्ट मैं पेरेंट को कॉल करता हूँ कि रात को आपका कैसा चल रहा है, कैसे चल रही है आपकी जर्नी, सारी चीजें सही है कि नहीं। ये एक शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा, जो पहले नहीं था। उसके बाद मेरे 2 बच्चे ट्विंस है, तो फैमिली जो पाउस था, तो मुझे भी थोड़ा सोशल वर्कर करने का
थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत बार बाहर ही रहता था दोस्तों के साथ, सलाह देना क्या फ्री में मिलता है तो सलाह, तो वो देने की कोशिश करता था। तो पाउस भी बहुत बार डिस्टर्ब होती थी कि आपका ध्यान नहीं है, बच्चे पे ध्यान नहीं है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था, करना चाहिए, इस तरह से बातें होती थी। तो अभी समझ में आ गया कि जितना भी टाइम मिलता था वो टाइम में देने के लिए काबिल बन पाया। इससे पहले क्या होता था कि प्रायोरिटी सेट नहीं होती, हम बहुत बार हमारा जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, स्कैटर बनाते हैं। हमें लगता है सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजों लोगों को मिलना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन अभी समझ में आता है कि एक फोकस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में अभी थोड़ी बहुत समझ को पा रहा। दूसरी दूसरी बात मैं आपको शेयर करूंगा कि जो कलीग थे, कलीग के साथ भी इतने अच्छे संबंध नहीं थे, है ना। जॉब हम इस तरह से करते थे कि भाई पूरा ग्रांटेड पकड़ते थे कि जॉब में भी क्या, चलो जाना आना खाना इतना ही चल रहा था। और टीचिंग लर्निंग के बारे में ये बात मैं गणेश भैया से भी शेयर कर रहा हूँ किया था कि जब टीचिंग कर रहा था तो टीचिंग 45 मिनट्स का होता था, तो जाना और बम्बार्डिंग करके वापस आना, उसमें भी स्टूडेंट के साथ भाव नहीं दिखाई देता था। लेकिन मैं जब यूएचयू पढ़ाने लगा, यूएचयू के साथ इस कंटेंट के साथ जुड़ गया, तो समझ में आ गया और मैंने बहुत सारी वीडियो सुनी हाउ टू शेयर द वैल्यूज, तो थोड़ा संबंध बढ़ गया, स्टूडेंट के साथ संबंध बढ़ गया। और अच्छी तरह से प्रपोजल रखने के लिए थोड़ा सा प्रयास अच्छी तरह से किया, तो अभी समझ में आता है जो स्टूडेंट 21 में मेरे साथ जुड़े थे, वो अभी 4th ईयर में, वो 3rd ईयर में, 4th ईयर में जैसे ही कॉलेज में एंट्री करता हूँ तो लोग ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो मुझे समझ में आता है कि उनके साथ थोड़ा मेरा भाव बढ़ गया, संबंध बढ़ गया। एक स्टूडेंट था, मैं आपको शेयर करूंगा, एक स्टूडेंट था, वो सीएससी का था, वो सीएससी का स्टूडेंट 4th ईयर में गया, और वो एक्चुअली उनकी मैम के साथ डिस्कस कर रहा था, और उसने बोला कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आपको सुरेंद्र सर से सीखना चाहिए कैसे पढ़ाता है, पढ़ाना है। तो वो दोनों बाद में मेरे पास आ गई कि आपने क्या, ये तो कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से स्टूडेंट बोल रहा था। मैंने बोला कुछ नहीं, हम थोड़ा स्टूडेंट को उसके हिसाब से उसके साथ भाव बना के सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तभी ये सारी चीजें बन जाती हैं। तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अभी एक्सप्लोरेशन चालू है, अभी बहुत आगे जाना चाहिए ऐसा भी लगता है। नेशनल गेम में आने के बाद लगता है कि अभी तक कुछ काम ही नहीं किया आपने, और करना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। तो प्रोपोर्शनल, जैसे मैं बोला कि हमने यूएचवी सेल इस्टेब्लिश किया है, कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। यूएचवी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप उमेश भाई के साथ किया है, 60 फैकल्टी में कंप्लीट किया है, 12 फैकल्टी ने यूएचवी को कंप्लीट किया है। तो आने वाले जो भी प्रोजेक्ट हमारे यूएचवी के है उसके बारे में हम अश्योर है कि भाई वो हमारे रीजन में, हमारे कॉलेज में करना चाहते। एक किस्सा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में शेयर करूंगा। मेरे एक कलीग है, वो मैथ्स के फैकल्टी, और क्या हो गया कि ना उनकी उम्र थी 34 ईयर्स, तो हम बहुत बार उनको टाणी मारते कि आपको शादी करनी चाहिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शादी करनी चाहिए, आपका सब कुछ अच्छा है, शादी करनी चाहिए। तो रात के एक दिन में 8:30 बजे मुझे फोन आया, उनका नाम गणेश था। सर आप कहाँ है? मैंने घर में हूँ। आप हमारे पुणे के लोग उनको बताए कात्रज देवी के पास आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और मैं गया तो उसने उसके स्पाउस को लेके आया था, और उसको बोला कि ये ऐसा ऐसा हमारा चल रहा है और हम शादी करने जा रहे हैं। मेरी वाइफ बोली कि भाई आप दूसरों की शादी कब से जुटाने लगे, है ना, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, आपके घर में आपका ध्यान नहीं है, कैसे चल। मुझे पता नहीं था, लेकिन उससे लगा कि भाई ये आती है, इससे थोड़ा हम बात कर सकते हैं, उसको थोड़ा ट्रस्ट का भाव लगा था। तो मैंने बोला बहुत अच्छा गणेश, आप अच्छी तरह से बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप चाहिए डिसीजन कीजिए। उसके बाद 15 दिन में क्या हो गया पता नहीं, हम सारे वेकेशन पे गए थे, मैं वापस आया और गणेश मेरे साथ ही बैठता था। गणेश मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब हो गया, मैंने बोला क्या क्या इशू क्या है? तो गणेश बोला कि वो मेरी शादी जिससे हो गई वो मानती नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा कुछ जमने वाला नहीं है, मैं कल ही मीटिंग लेने वाला हूँ, इस तरह से ये शादी रोकी जाए, उनके लोगों को बुलाऊंगा, सारे लोगों को बुलाऊंगा। तो मुझे लगा कि यहाँ मेरी टेस्ट है,
अभी मैंने बोला गणेश इमीडिएटली डोंट गो टू द डिसीजन, इमीडिएटली टेक डोंट टेक द डिसीजन, डोंट बी हरी, गिव टाइम टू योरसेल्फ, बी रिलैक्स। और उसके बाद उसको हमारे जो प्रपोजल है, इनडायरेक्टली हमारे जो प्रपोजल उसके सामने रखा, मैरिज इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्टेड थिंग्स दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने वो ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फ एंड द बॉडी, उसकी कुछ संकल्पना उसके साथ रखी। एक दो घंटे का काउंसलिंग होगा, उनके साथ भी बात हुई, पाउस के साथ भी फोन पे बात हो गई। तो उन्होंने मैंने बोला आज आप मत इमीडिएटली डिसीजन लीजिए, 2 दिन के बाद अगर आपको लगा सही लगा तो आप डिसीजन लीजिए। और क्या 2 दिन के बाद सारा चीजें नॉर्मल हो गई और 27 जून को अभी शादी उनका करके हम यहाँ आया। तो ये मुझे लगता है कि ये भी मुझ पे जो ट्रस्ट है मुझे भी दिखाई लगी है। और ये सारी चीजें जब मैं जहां भी रहता हूँ वहां वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मुझे ये बोलना है कि यूएचपी के माध्यम से जो कंडीसिव इन्वायरमेंट है वो जैसे हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं अल्टरनेटली बन जाता है, ऐसे मुझे लगता है। उसको बनाने की कोई ज्यादा कोशिश अगर हम करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको हड़बड़ी बन जाएगी, लेकिन इमीडिएटली अगर हम खुद में ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है। कंटेंट के बारे में ये कहूंगा कि सारी चीजें रीड करने के बाद, सारी फिलोसफी रीड करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि जीवन का सार क्या है, तो सुखी रहना है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो इमीडिएटली हमें ये दिखाने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें उसको अच्छी तरह से मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन जो है टीम में वो अभी तक अच्छा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करूंगा। तो इतना ही मैं बोलता हूँ, धन्यवाद। तो धन्यवाद भैया। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संगीता दीदी को। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संगीता शुक्ला है और मैंने अगस्त 2022 में यूएचवी का पहला वर्कशॉप अपने इंस्टीट्यूट फेस टू फेस हुआ था, तो उससे जुड़ना हुआ। इस तरीके की चीजों से लगाव मेरा पहले भी था। मैं पिछले कुछ समय से कुछ अलग अलग तरीके से इन चीजों से जुड़ी रही थी और कहीं ढूंढ ही रही थी, कहीं पीस ऑफ माइंड होना चाहिए मेरी। तो जब यूएचपी मिला तो काफी अच्छा लगा और लगा कि हाँ ये कुछ है जो मैं ढूंढ रही थी। और फिर उससे इसीलिए पूरी लगातार 2022 से आज तक मैं शायद ही कोई दिन होता है कि उसमें से कोई चीज टच ना करी हो, कुछ सुना नहीं हो। पर यूएचवी के पहले की बात बताऊं तो थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कहीं नेगेटिव थी, बहुत परेशान थी। उससे भी बड़ी चीज जो आज मैं अपना एक चीज को देख पाई, उसी चीज को मैं अभी शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे को बहुत कम बात करना आता था। मैं बात नहीं कर सकती थी किसी से भी। कोई ग्रुप में कहीं जाना है तो मैं कोशिश करती थी कि अवॉइड हो जाए, मेरे को जाना भी ना पड़े, और यदि चली गई तो बात ना करना पड़े, क्योंकि मुझे बात करना नहीं आती थी। कोई बात करे तो मेरे को रुकना आ जाता था। 16 साल तक एक इंस्टीट्यूट में काम करा। वो शुरुआत तो ज्वाइन तो एज एचओडी करा, पर जब कहीं मीटिंग में जाए तो गड़बड़ हो जाए, क्यों बात ना करना और नहीं तो रो देना। तो थोड़े दिन देखा, फिर बोल दिया भैया हमसे तो नहीं होगा, हमें हटना है वहां से। फिर एज ए प्रोफेसर में वहाँ 16 साल, फिर इंदौर शिफ्ट हो गई, 19 साल काम किया, पर एचओडी शिफ्ट नहीं करी, क्योंकि मीटिंग में जाना तो बोलेगे कैसे। फिर उसके बाद और यदि पहले, अच्छा वो जो चेयरमैन सर थे उनको पता था कि पहले से पता है, प्रिपेयर कर लेंगी तो काम करिए, तो पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती थी कि ये चीज तुमको करनी। फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठ के उसकी खूब तैयारी करी, खूब अच्छे से लिखा कर आई।
फिर जाके बोल रही हूँ तो कहीं हाथ में पसीना आ रहा है, तो कहीं हार्ट बीट डबल तिबल चबल हो गई है, पर उतनी देर वो चीज मैं रख पाती थी। तो ऐसा सब चलता था। फिर जब यूएचवी से हुआ, थोड़ा 2 साल अपना मेंटल स्टेट को थोड़ा ठीक करने में लगा। उसके बाद से 2024 से जब से एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो काफी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसमें इस चीज को ओवरकम करने में हेल्प दी मेरे को। आई एम सिमिलर टू अदर। जब मैं इस चीज को देखती थी, मैं बार बार कोशिश करती थी कि ये क्यों प्रॉब्लम होता है मेरे साथ, कि मैं इतनी घबराहट क्यों होती है, क्या परेशानी। तो देख पा रही थी कि एक तो डर कि गलत हो गया तो क्या होगा, फिर वर्ड्स नहीं थे मेरे पास, क्योंकि बात ज्यादा करती नहीं थी, इसलिए वर्ड्स होते नहीं थे कि क्या वर्ड्स यूज करना है। तो वो एक फियर की गलती होगी, क्या सोचेंगे, फिर प्रपोजल आ जाता था, अदर इज सिमिलर टू मी। इस चीज को एक्सप्लोर करते करते अभी आज भी मैं देख पाई कि जब मेरे को प्रिपेयर नहीं हूँ और शैफुला दीदी को बुलाना है, तो मैं अपने अंदर में ऑब्जर्व किया कि मेरी आज हार्ट बीट डबल नहीं हुई, मैं नॉर्मल मोड में रह पाई। तो ऐसा ये चीज में मैं थोड़ा अपने आप में ओवरकम कर भी पाई इस चीज की मदद से। और मैं अब थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ कि यूएचवी के बहुत सारे प्रपोजल मैं अपने लाइफ में यूज करके चीजों को करेक्ट कर रही हूँ, सिंप्लीफाई हो रहा है, और एक इनर पीस कहीं मेरे अपने आप में मैं देख पाती हूँ। तो यदि आज मैं यदि बिना कागज के कुछ बोल पा रही हूँ, तो उसी चीज के लिए कि मैं थोड़ी सी उस चीज डर को, अपने उस डर को मैं निकाल पाई कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, कॉम्पिटेंस काम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कोशिश भी करती हूँ। जैसे शेयरिंग टीम में हम मीटिंग करते हैं, तो जब हम आपस में कंफर्टेबल हैं, वहां में बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आती है बात मीटिंग में रखने की, कि वो मीटिंग वेडनेसडे की मीटिंग में होगी, तो बकायदा हम तीनों जन आपस में कि संगीता दीदी रखेंगी, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे इसी सीक्वेंस में रखना है। 4 बार प्रैक्टिस होती है कि इस तरीके से दीदी ये बात रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भूल जाओ तो इसको देख लेना। तो इस तरीके से हमारी वो बोलने की प्रैक्टिस चलती है कि किस तरीके से बिना गड़बड़ करे बात रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इस पे भी मेरा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। सभी को थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी को हम इंस्टीट्यूट लेवल पे भी बहुत मिस करते हैं, परंतु दीदी का सहयोग भी हमको सीआरटी में बहुत बना देता है। और मुझे लगता है दीदी ने जो इंस्टीट्यूट को हम गेप लिया और परिवार को देखने के लिए, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। धन्यवाद दीदी। और अब मैं मोहित भैया को इनवाइट करना चाहूंगा शेयरिंग के लिए। ठीक है। सभी को नमस्ते। मैं मोहित श्रीवास्तव, यूपी के रायबरेली साइड से। मेरी जर्नी जब भी स्टार्ट हुई है, उसमें एक बात तो ये रही कि मैं फोर्सफुली नहीं भेजा गया। सन 2009 की बात है, और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो पहले यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है,
मेरे यहाँ डायरेक्टर शर्मा जी थे और वो आए मेरे केबिन में मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि एक कार्यशाला होनी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में की तरफ से लेटर आया है, किसको भेजा जाए, ह्यूमन वैल्यू की है। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे और उस डिस्कशन में उन्होंने एक बात और शेयर की कि अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर मीट हुआ था ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और उसमें एक व्यक्ति आए थे आईआईटी के हैं वो, और वही धोती कुर्ता ऐसा कुछ पहने हुए थे। तो उनकी जब मैंने ये बात सुनी तब मैं उनकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट से उनकी बात को सुनने लगा, और उस चर्चा के लास्ट मोमेंट पर मैंने उनसे कहा कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों जाओगे इसमें, तुम्हारा क्या है। हमने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ, आप मेरा नाम लिखिए। तो खैर वो तैयार भी हो गए और ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने हमसे कहा कि जिस तरह जा रहे हो लौटना इसी तरह। तो हम कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उनके मानस में जो इमेज गणेश सर की थी शायद वो उसी को ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही। और उत्तर प्रदेश की वो पहली कार्यशाला थी, मुझे डेट बिल्कुल ठीक से याद है, 21 मई से 27 मई सन 2009। और मेरी संस्थान से मैं, मेरे रजिस्ट्रार और 2 फैकल्टी मेंबर अप्लाइड साइंस के उसमें गए थे। कार्यशाला शुरू हुई, मैंने 7 दिन कार्यशाला की, मैंने एक भी प्रश्न वहां नहीं पूछा क्योंकि मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं सुनने में ज्यादा मुझे यकीन है, मैं सुनता बहुत ठीक से हूँ। लेकिन उस कार्यशाला में जो मैंने उठा पटक देखी, हमको लगा नहीं था कि ये कुछ चलेगा आगे। लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्नों से घेरा था गणेश जी को, और आर गौड़ जी उसमें थे उस समय। तो मुझे लगा नहीं था कि बहुत सरवाइव करेगा ये पहले दूसरे दिन। और तब कार्यशाला समझ समझ सुविधा से नहीं शुरू होती थी, गणेश सर शुरू करते थे 2 प्रश्नों से कि व्हाट टू डू एंड हाउ। यहाँ से कार्यशाला शुरू होती थी, तो पहले दूसरे दिन तक तो ऐसे ही रहा, लेकिन परिवार की जब चर्चा शुरू हुई तब मेरा ध्यान भी उधर उन्होंने अपनी ओर खींचा। और 7वें दिन आते आते मुझे एक बात बहुत ठीक से कंक्लूड हुई अपने पे कि जीने के अर्थ में समझना काफी अभी शेष है, जिसकी यात्रा शायद मैंने नहीं की है। इस कंक्लूजन के साथ वहां से गया। यूनिवर्सिटी में पहला ऑडिट कोर्स के रूप में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसकी कॉपियों की इवैल्यूएशन के लिए भी उन्हीं व्यक्तियों की जरूरत थी जो वर्कशॉप को करते थे। मेरे पास फोन आता है सेमेस्टर ब्रेक में कि कॉपी चेक होनी, भैया आप आ जाइए। तो मैं पहुंचा और डेली शाम को गणेश सर 5 बजे करीब आते थे और 1-1.5 घंटे का सेशन भी चलता था। कुछ लोगों का जो फीडबैक था, जो कॉपी चेक करने आते थे, कि हम लोगों को बुला लिया कॉपी चेक करने के लिए, 2 घंटा तो यही खा गए, 2 घंटे में 2 बंडल निपट जाते, 1200 का नुकसान हो गया। ये फीडबैक जो वहां चलता था। लेकिन वो जो सफर 2009 में शुरू हुआ, उसको बूस्टर का काम, ये बीच बीच में जो गणेश जी के सेशन थे इंटरव्यूशन के समय 6 दिन 7 दिन के, वो बहुत काम आते थे। और उसी बीच में गणेश सर की एक PSL2 लेवल 2 की ऑडियो है, जो मुझे याद है मैंने मोती जी से उसको ली थी, उसको मैंने सुनना शुरू किया। वो यात्रा इसी चली, और इस सब्जेक्ट को मैं अपने बीटेक के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करता था। तो उसको पढ़ाने के लिए जो तैयारी थी, उससे भी बहुत सारी बातों पे ध्यान जाता था। कुछ इस तरीके से मेरा ये सफर शुरू हुआ। और 2012-13 में आते आते एक समय पर ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस परिवार के और संस्थान स्तर के ऐसे बने कि हमको लगा ये सब बहुत फालतू चीज है, कोई मतलब है नहीं। तो 1-1.5 साल का लंबा गैप में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था इसको, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन फिर कुछ अस्तित्व सहज विधि से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी
कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे उस तरफ ही जाना चाहिए। और फिर उसके टच में आए और पढ़ा तो रहे ही थे। फिर एक प्रयोग के तौर पर मैंने रायबरेली में एक लालगंज एरिया है, वहां पर एक गांव है, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पर एक प्रयोग किया मैंने, इवनिंग शाम को 5 से 8 गांव वालों के साथ इस बात को शेयर करना शुरू किया। काफी अच्छा फीडबैक मिला उसका। उसके बाद स्कूल के बच्चों के साथ इवनिंग वर्कशॉप शुरू की, उसका भी काफी अच्छा इम्पैक्ट मिला। अपने मोहल्ले में कई परिवारों के साथ इसको किया है, 2014 के आसपास की बात, 14-15 के आसपास। इस बीच में कहीं से बात भानु जी को या मूर्ति जी को किसी को भी बात पता चली कि मैं कुछ इस तरीके का काम से कर रहा हूँ। तो उनकी तरफ से बात आई कि आप कभी आइए और एकेडयू में एक मीटिंग है, आप उसमें आइए। 2015 की बात हुई, मुझे जहाँ तक ध्यान है। मैं उसमें पहुंचा, गणेश सर भी वहां थे। और 2016 के आसपास एक बार मोदी जी का मेरे पास फोन आया कि भैया यहाँ लखनऊ में एक कार्यशाला है, आप आ जाइए तो थोड़ी मदद होगी, कोई है नहीं। लेकिन मैं एग्जामिनेशन में असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट था, तो एग्जामिनेशन चल रहे थे, तो मैंने मना किया कि मैं आ नहीं पाऊंगा भैया, जिम्मेदारी मेरे पास है कॉलेज की, मैं छोड़ नहीं सकता। 2 दिन ही बीते थे कि फिर उनका फोन आया कि आ जाइए किसी भी तरीके से, यहाँ जरूरत है। मैंने डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा देख लीजिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको कर दीजिए या किसी को सपोर्ट करके आप लाइए। यदि मैं पहुंचा, फिर मुझे लगता मैं तीसरे दिन पहुंचा, तो मोदी भैया ने कहा कि एक सेशन लेना है, आप सेशन ले लीजिए। तो ठीक है, ले लेते हैं। सेशन ले लिया। अगले दिन चौथे दिन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि एक सेशन ले लीजिए, फिर एक कोई सेशन ले लिया। 16 के लास्ट की बात है, मुझे लगता है 16-17 में किया। और फिर 17 के लास्ट के आते आते एक दिन मोदी जी का फोन आया कि एक कार्यशाला है इलाहाबाद में, वो आपको लेनी है। तो लगता है शायद वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ के लोगों की थी। तो मैं गया, 8 दिन की कार्यशाला थी, मैंने उसको ली। और फिर वहां से लौटा तो फिर कानपुर में एक कार्यशाला थी अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में, हैंडीकैप वाले में, उसको ली। तो ये भागीदारी का सफर वहां से मेरा स्टार्ट हो गया। और लगातार फिर जब भी मुझे अवसर मिले उसको मैं देखा रहा। एक बात मैं अपने इस पूरी जर्नी में देखता हूँ कि मेरा जो भी एक्सप्लोरेशन हुआ है, या जिस तरीके से भी मेरे अंदर जो भी परिमार्जन हुए हैं इनर लेवल पर, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है मेरा पार्टिसिपेशन का ही है। क्योंकि समझ की यात्रा में मुझे लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को जिस तरीके के वातावरण की आवश्यकता है वो कार्यशाला में ही उपलब्ध हो पाता है, 5-6 दिनों में। और कंटिन्यूएशन में वो वातावरण मिल पाता है जहाँ पर मानव का ध्यान वास्तविकताओं की तरफ से ठीक से जाता है। क्योंकि किसी जिम्मेदारी के साथ उसको वहां प्रस्तुत होना होता है, और उस जिम्मेदारी के निर्वहन में उसको अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना होता है। तो उससे उसकी जो गति है उसको मैं अपने अंदर बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि वो जो गति होनी है एक्सप्लोरेशन की दिशा में, सही दिशा की तरफ, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस पार्टिसिपेशन का, जो मैं साल भर में कम से कम 2 कार्यशालाएं में जरूर करता था। उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। और उसी से जो अंदर प्रेरणा प्रेरणा क्या, या जो चीज जब अंदर सही दिखती है तो फिर उसको अपने में बनाए रखने का जो कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसका जो अपने में उत्साह बनता है, तो लगता है कि इस काम में जब भी अवसर मिला अपने बच्चों के साथ, यानी स्टूडेंट्स के साथ, मोहल्ले में, इवन तो अपने परिवार के साथ, परिवार की उपलब्धि में मैं ऐसे देखता हूँ कि आज भी मेरे घर में समीक्षा बैठक के रूप में पूरा परिवार बैठता है। और रिश्तों में मैं देखता हूँ तो अगर सबसे कंफर्ट अगर मैं किसी रिश्ते में मानता हूँ तो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी भी वैसी ही है। और उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस यात्रा में, क्योंकि उनका कमिटमेंट अगर नहीं होता तो शायद मैं इसको कर भी नहीं पाता। तो परिवार के स्तर पे तो मेरा काफी जीने में हल्का है, बहुत आराम से मेरे परिवार के साथ एडजस्ट, मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी। और मेरी इस यात्रा में जो मैं
पिछले वर्ष से मध्य प्रदेश की यात्रा शुरू की है, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी पत्नी का है। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम से ये कहा कि अगर इस काम को करने में आपको खुशी मिलती है तो आप बेझिझक जाइए और मैं यहाँ पर संभालूंगी परिवार को। तो उनका बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उनके प्रति तो बहुत कृतज्ञ रहता हूँ कि उन्होंने मेरा वो आदर्श उदाहरण रखा और उन्हीं के प्रयास से या फिर वो जो जिम्मेदारियों का निर्वहन वहां कर रही है मेरी अब्सेंस में, उसकी वजह से मैंने फिर 1 साल का एक्सटेंशन और लिया है कि मैं 30 अप्रैल तक यहाँ और रुकूंगा ताकि अपनी उस भागीदारी को ठीक से कर पाऊँ। पिछले 1 साल में अपने इस पूरे इसका रिव्यू करता हूँ तो सुविधा के स्तर पर मैंने उस बात को इन 1 साल में जीकर देखा है कि 3 जोड़े कपड़े से मैं इस 1 साल में 3 जोड़ी कपड़े हैं जिनके साथ मैं जी रहा हूँ। तो इससे इस बात का भी कॉन्फिडेंस बनता है कि मानव की आवश्यकता है नहीं जितना आदमी सोचता है। उसी एक बैग में 3 जोड़ी कपड़े और मंजन ब्रुश शीशा, यही है 1 साल से। और ठिकाना पूछेंगे तो कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है। 17 से 18 दिन 16 दिन जहाँ कार्यशाला होती है वहां रहता हूँ, 3 से 5 दिन रायबरेली रहता हूँ, बाकी 6 दिन 8 दिन 10 दिन जो बचे वो केसरी जी के घर रहता हूँ। ऐसा ही पूरे 1 साल से मेरा सफर चल रहा है और आगे की 30 अप्रैल तक की यात्रा भी ऐसे ही चलेगी। और इस पार्टिसिपेशन को ही मैं अपने एक्सप्लोरेशन का सोर्स मानता हूँ कि मैं इतना कर पाता हूँ, तभी मेरे अंदर जो आराम है, जो सहजता है और बहुत आसानी से चीजों को लोगों के सामने रख पाता हूँ उस संबंध के भाव से, वो उसकी उपलब्धि मेरा पार्टिसिपेशन है। और इस यात्रा में आप सब लोगों का जो ये संयुक्त प्रयास है इस बात को लोगों की तरफ, समाज के अन्य लोगों तक ले जाने के लिए आप सभी के प्रयास को भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही सुबह से मैं बैठ के इस बात को भी ऑब्जर्व कर रहा था कि सभी लोग देश के अलग अलग कोने से हैं, अलग अलग भाषाओं से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन फीलिंग के लेवल पर जुड़ने के लिए भाषा जो है कोई मुद्दा नहीं है। उस भाषा कैसी भी हो लेकिन फीलिंग अगर रिलेशंस की है तो हम सब एक जगह बैठकर जुड़ सकते हैं। और इतने सारे लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, तभी वो बैठे हैं। तो मेरी अपनी इस यात्रा में आप सभी के प्रति साथ ही साथ मेरे जो मेंटर गणेश जी रहे हैं, और सबसे अधिक मैंने किसी की ऑडियो सुनी है तो गणेश जी की सुनी। अच्छा लिसनर हूँ मैं, अभी भी उनको सुनता हूँ। और इस बीच में मैंने काफी एक्सप्लोर किया है ये पिछला मेरा 1 साल। गणेश जी जितने भी मेंटर्स हैं वो सब मेरा परिवार, पूरी मानव जाति को मैं कृतज्ञता करती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद भैया। अब मैं निवेदन करूंगा इनके थैंक यू से बहुत समय लगेगा मेरे भी, क्योंकि मैं मंगेश त्यागी, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। मेरे 2 बच्चे हैं, सेटल्ड हैं अब्रॉड। मेरी यात्रा बहुत छोटी है, शायद मैं सबसे यंगेस्ट हूँ इस परिवार में। पिछले साल ही मेरी यात्रा शुरू हुई है ये, और इसका पूरा श्रेय अरगल साहब को लगता है। उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया, एक वर्कशॉप में भेजा, मोहित भैया की वर्कशॉप थी वो। तो बहुत कुछ मेरे पास शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी, और ना ही मैं किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जो भी यात्रा इसमें है सेल्फ डेवलपमेंट की है। शुरुआत ऐसे करूंगा मैं कि हम और अरगल साहब एक इंस्टीट्यूशन में पहले थे जब ये कॉन्सेप्ट आया प्रदेश में लागू करने के लिए, और हम बैठ के चर्चा ही कर रहे थे, बल्कि इनफैक्ट आपको कमेंट्रीज में देना था एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अरगल साहब को। तो हम लोग ये बात की कि ये तो एक बड़ा पर्सनल इशू है, आदमी के लिए हैप्पीनेस ये इंटरनल चीज है, इसमें सरकार का क्या रोल है, बट फिर भी चूंकि गवर्नमेंट चाहती है तो इसमें भी गिव फेवरेबल कमेंट, और वो संस्थान खुला और फिर हमारे अरगल साहब उसमें
CEO के रूप में गए। उसके बाद मुझे फिर अवसर मिला जब अर्गद साहब ने मुझे इस वर्कशॉप में भेजा मोहित भैया की, तो वहाँ यूएचवी के कॉन्सेप्ट से मेरा आमना सामना हुआ। और जब वो कॉन्सेप्ट अनफोल्ड होना शुरू हुए तो पहला थॉट मेरे दिमाग में गया कि हाउ मिसप्लेस्ड वी वेयर एट दैट टाइम, कि ये आदमी की अपनी एक पर्सनल चीज है। और वो इतने पावरफुल थे कि उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इमीडिएटली उससे रिलेट करते हैं। समय नहीं है लेकिन मैं कुछ उसमें एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रखूंगा। जैसे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अनफोल्ड हुआ, पहले भी बेगी के सब आइडियाज रहते हैं आदमी को कि आदमी के जीवन का फैलाव कितने स्तर पर है। और जब पहला आया कि आदमी जो है सेल्फ का और शरीर का को एक्सिस्टेंस है, सभी जानते हैं ये, लेकिन आगे बढ़े तो पता लगा कि जो सेल्फ की आवश्यकता है वो शरीर की नहीं, अलग है। सेल्फ की आवश्यकता सेल्फ की नहीं, और यही सारा कंफ्यूजन हो रहा, सारा दुख यही से जनरेट हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने जो सेल्फ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकता से पूर्ति कर रहे हैं, जो कि होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सकल कॉन्सेप्ट अनफोल्ड हुए। फिर आगे परिवार की व्यवस्था में पहुंचे तो पता लगा कि परिवार की व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो भाव का है, जिन भाव के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसमें गहराई से उतरे तो वहां पता लगा कि वो एक एक भाव के पीछे आप देखिए, आप सोचते क्या होता क्या है और वास्तविकता क्या है। जैसे हम लोग कई दिन से बात कर ही रहे हैं कि मूल चाहना हम सबकी एक ही, अगर कमी है तो नहीं योग्यता की कमी है। इसी तरीके से सम्मान में जाते हैं, जब फिर ग्रेटिट्यूड में जाते हैं तो पता लगा उसको पढ़ने के बाद सुनने के बाद में कि हमने कितना इसके प्रति मतलब इसका स्कोप कितना बड़ा है। और फिर ध्यान दिया तो कितने लोगों का हमारे लिए सहयोग रहा और हमने किसको कितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। आज भी देखना कितने लोग हमारे लिए काम करते हैं, कितना एक्सप्रेस करते हैं। तो पता वहां पे लगा कि हमारे जीवन में वास्तव में ये चीजें अभी भी हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। और आगे बढ़े तो फिर नेचर में आ जाइए, नेचर में आ गए तो पता लगा कि हम तो बिल्कुल उल्टा ही सोचते हैं, नेचर हमारे एक्सप्लॉइटेशन के लिए नहीं सोचते हैं। तो पता लगा वहां जाके इसमें तो म्यूचुअल फुलफिलिंग रोल है, इसमें तत्पूरकता का रोल है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, हमको इसमें जीना है। तो ये सारी चीजें जब कॉन्सेप्ट के रूप में पता लगी तो आदमी का सोच एट द बैक ऑफ द माइंड तुरंत वहीं से आ जाती है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज सो पावरफुल। अब उसके बाद फिर ये लगा कि जब समझ में तो आ गई, अब इसको लागू कैसे करें सेल्फ डेवलपमेंट में। तो विचार किया कि सबसे आसान तरीका यही है कि जो उसकी विधि है वही सबसे आसान तरीका है। तो मैंने सबसे पहले यही फिर बनाया कि आपसे मैंने कहा आपसे हर चीज हर प्रस्ताव के रूप में ही आएगा। और फिर मैंने उसको फैमिली से ही शुरू किया। अब जो भी चीज रखेंगे, हालांकि मैं सफल नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सफल हो गया उसमें, बट कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं सजग रहूं थोड़ा सा और उसको प्रस्ताव के रूप में ही रखूं। अब चूंकि बच्चे अब्रॉड हैं तो कभी कभी उनको एक्सपोजर देने के लिए उनका कोई इशू आता है तो मैं इस कॉन्सेप्ट के रूप में रिलेट करके उनके सामने प्रस्तावित कर देता हूँ एंड लीव द डिसीजन टू दैट कि आप उसको ले लीजिए। सिमिलरली थोड़ा प्रयास किया कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया जाए। हालांकि पता लगा कि केवल पोषण का ही रोल नहीं है हेल्थ, हेल्थ में रोल जो है आपके आहार विहार का भी है, लाइफ स्टाइल का भी है। पहले भी तो बहुत खराब नहीं थी लाइफ स्टाइल, लेकिन फिर भी जो कुछ वहां पे सीखा उसको और आगे लागू करने लगे और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया तो उसका एक मार्कर भी हमको मिल गया कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गया। तो छोटी छोटी चीजें लेकर के मैं इसको प्रस्तावित कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। और फिर एक समाज का भी उसमें आता है, और समाज के लिए करने के लिए ऑल आई कुड डू इसके लिए मैं एक रिसोर्स पर्सन के रूप में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो उसको मैंने पिछले एक साल से करना शुरू कर दिया है। तो बहुत ज्यादा मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा अभी रिसेंट एंट्रेंट इसके लिए, बट धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि जितना कुछ हो सके इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं इसके लिए अर्गद साहब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये इंट्रोड्यूस मी टू दिस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इतनी सारी शेयरिंग से हमारा ध्यान बहुत सारे उन वस्तुओं पे गया है जो सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी भैया, तो हम 3:50 पे वापस लौट के आएंगे और कुछ शेयरिंग बची है उनके साथ। And this will be a validation function. जी Validity session also. जी, थैंक यू।